دوستوں 17 اکتوبر 2025 کے روز میں نے انقلاب اخبار میں سر سید احمد خان کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا۔ 17 اکتوبر جو ہے وہ سر سید کا برتھ اینیورسری بھی ہے، اور اس دن علی گڑھ، ہندوستان کے مختلف حصے اور دنیا بھر میں سر سید ڈے منایا جاتا ہے۔ تو میری رائے، میری سمجھداری سر سید کے بارے میں کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرا مضمون ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس مضمون کا جو ہیڈ لائن ہے وہ کچھ یوں تھا: ایک جذبہ اور عقیدت کا استعارہ۔ میں مضمون پڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی علی گڑھ کے طلباء اور اساتذہ موجود ہیں، وہ سر سید ڈے کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات اور پروگراموں میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اور لیگ برادری کے لیے سر سید صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک جذبے اور عقیدت کا استعارہ ہے۔ مادر علمی سے سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء اس سے روحانی طور پر وابستہ نظر آتے ہیں۔ گرچہ سر سید کی بعض تحریروں سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، خصوصاً ان کی کتاب اسباب بغاوت ہند کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلم اشرافیہ کے مفادات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تاہم اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، آئندہ بھی کہا جاتا رہے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بڑا انسان تنقید سے مبرہ نہیں ہوتا۔ اختلاف رائے کا ہونا فطری امر ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا تجزیہ ہر دور میں مختلف زاویوں سے کیا جاتا ہے۔ البتہ سر سید کے ناقدین بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مغربی علوم کا گہرا مطالعہ کیا اور غور کیا کہ ہندوستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف علم و فن کے دروازے وا کیے، بلکہ اپنے عہد کے اہم ترین سماجی و فکری مسائل پر جرأت مندانہ انداز میں قلم اٹھایا۔ ایک اندازے کے مطابق سر سید کی شائع شدہ تحریریں 6000 صفحات پر مشتمل ہیں۔ گرچہ ان کا کچھ حصہ محفوظ نہیں رہا، جو کچھ دستیاب ہیں وہ بھی اس قدر وقیع ہیں کہ اس پر کئی تحقیقی کتابیں مزید لکھی جا سکتی ہیں۔ سر سید احمد خان جس دور میں پیدا ہوئے وہ بر صغیر میں مسلم سیاسی طاقت کے زوال کا زمانہ تھا۔ 17 اکتوبر 1917 کو ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ابتدائی طور پہ انہوں نے عربی اور روایتی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد میر متقی دربار سے پینشن لیتے تھے، لیکن والد کے انتقال کے بعد 1838 میں وہ پینشن بند ہو گئی، جس کے بعد سر سید نے دہلی کی ایک عدالت میں کلرک کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی نوکری کی وجہ سے وہ بعض حلقوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ سر سید مطالعہ کے
नहायत शौकीन, इल्म दोस्त और फ़आल शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने दिल्ली की कदीम इमारतों का मुताला किया और इस तहकीक का नतीजा असारुस सनादीद की सूरत में सामने आया, जो आज भी माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक अहम दस्तावेज समझी जाती है। इस किताब को गैर मामूली पजीराई मिली, यहाँ तक कि उसका फ्रांसीसी जबान में तर्जुमा किया गया और सर सैयद को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का रुकन मुंतखब किया गया। 1857 में जब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो सर सैयद उस वक्त बिजनौर में मुलाजिम थे, जहां उन्होंने कई अंग्रेज अफसरों और उनके अहले खाना की जानें बचाई। बगावत की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया, तो सर सैयद ने दानिशमंदी से मुसलमानों को मशवरा दिया कि वह महाज आराई के बजाय तालीम, मईशत और समाजी तरक्की पे तवज्जो दे। उन्होंने असबाब बगावत हिंद तसनीफ की ताकि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानी मुसलमानों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हों। इसी मकसद के तहत उन्होंने अलीगढ़ में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तर्ज पर एक तालीमी इदारा कायम किया और रिसाला तहजीबुल अखलाक के जरिए मुसलमानों में बेदारी पैदा की। वह समझते थे कि मगरबी उलूम और तहजीब की मुस्बत बातों को अपनाना ही तरक्की का रास्ता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ बराह रास्त सियासी महाज आराई नुकसानदेह होगी। यही वजह थी कि जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई तो उन्होंने बदरुद्दीन तैयबजी को ख़त लिखकर अपने इख्तलाफ का इजहार किया। कौमी तारीख निगारी में सर सैयद के इस ख़त को मनफी तौर पर पेश किया जाता है। दुख की बात यह भी है कि पड़ोसी मुल्क सर सैयद को अपना बानी मानता है, हालांकि वह पाकिस्तान के क़याम से तकरीबन निस सदी कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अगर सर सैयद की कांग्रेस हिमायत पर तनकीद को मुस्बत तौर पर देखा जाए तो वह दरअसल अक्सरियत पर मबनी सियासत के खतरात की तरफ इशारा थी। इंतखाबात के जरिए जब हुकूमत साजी होती है तो अक्सर अक़लियतों के मफादात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि जिस कौम या मिल्लत की तादाद ज़्यादा होती है वही हुकूमत साजी के उमूर को तय करती है। इस बात पर डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने दौर में तनकीद की और कहा कि अक्सरियत पर मबनी हुकूमत साजी का मतलब यह नहीं है कि अक़लियतों के मफाद को फरामोश कर दिया जाए या हुकूमत मुतलकुल ईनान बन जाए। बाबा साहब भी जमहूरियत में दबे कुचले और महकूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के ख्वाहां थे। सर सैयद ने भी अपने दौर में अक़लियतों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से तैयब जी को ख़त लिखा था। कई मौक़े पर सर सैयद को कांग्रेस तहरीक पर तनकीद के बायस अलहदगी पसंद समझा जाता है, हालांकि यह तासुर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने बार बार मजहबी हमांगी और कौमी इत्तेहाद की बात की। सर सैयद के उन अल्फाज पर गौर कीजिए। हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। मेरा ख्याल है कि अगर एक कौम तरक्की करे और दूसरी पीछे रह जाए तो हिंदुस्तान की हालत कभी बेहतर नहीं हो सकती और वह एक आँख वाले इंसान की मानिंद हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों कौमें शाना बेशाना तरक्की करे तो हिंदुस्तान का नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा और वह एक आँख वाली, बिखरे बाल वाली, बेदांत वाली बुढ़िया कहलाने के बजाय एक खूबसूरत और दिलकश दुल्हन बन जाएगी। दरअसल सर सैयद हिंदुओं और मुसलमानों में बिगाड़ पैदा करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी कोशिश थी कि इक़्तिदार और तरक्की में सबको बराबरी का हिस्सा मिले,
क्योंकि सबकी तरक्की ही मुल्क की तरक्की है। आज की सियासत में यह पैगाम और भी अहम हो गया है, मगर अफसोस कि इख्तदार में बैठे लोग यह समझते हैं कि कमज़ोरों और महकूमों को मज़ीद दबाकर मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ फ़िरका परस्तों की यह खाम ख्याली है कि नफ़रत का जहर फैलाकर और मज़हब के नाम पर वोट हासिल करके मुल्क को ताकतवर बनाया जा सकता है, मगर इख्तदार के नशे में चूर लोग यह भूल जाते हैं कि अगर कश्ती में कहीं छेद हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश न की जाए तो पूरी कश्ती डूब जाती है। सर सैयद की तहरीक का पैगाम यही है कि फ़िरका वाराना हम आहंगी, तालीम की तरक्की और समाजी और मजहबी इस्लाह ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। कई बार उनके मजहबी अकीदे पर भी सवाल उठाए गए, उन पर दीन से भटकने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, मगर वह दीन और मजहब के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि वक्त गुजरने के साथ मजहब में गैर ज़रूरी रसूमात और जुमूद की धूल जम जाती है जो इंसान के जहन को कैद कर लेती है। सर सैयद चाहते थे कि इंसान गौर व फिक्र करे और दीन और फितरत के बीच हम आहंगी पैदा करे। उनका जोर था कि अक्ल और दानिश की रोशनी में अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए समाजी और दीनी इस्लाह की जाए ताकि इंसानियत आगे बढ़ती रहे। शुक्रिया।